So we are starting with the daily The Hindu News Analysis. We are starting with daily The Hindu News Analysis for 24th of April 2020. So these are the news articles that we are going to see in today's DNA. मनरेगा वाला article हम detail में cover करेंगे, right? And then DRDO develops mobile virology lab. CSIR lab defends sanitation tunnel after ministry's advisory, right? And then you can access all my courses, as I said. So these are the editorials which we are going to see. Rapid failures, COVID-19 paradox in South Asia. ये इतना important नहीं है आज, तो हम ये article को threadbare analysis करेंगे आज इसका. And how will India emerge out of lockdown? Not so important again. Then आते हैं आज के न्यूज आर्टिकल्स पे. प्रोटेक्शन फॉर द प्रोटेक्टर्स. वेरी ऑफन द अब्यूज एंड वायलेंस अगेंस्ट healthcare workers after the outbreak of COVID-19 in the country has been due to fear and ignorance. Communal color given to COVID-19, यानी कि इसको एक जो है धार्मिक रंग जो दिया जा रहा है, communal color after तबलीगी जमात कंट्रोवर्सी कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को एक्यूज किया जा रहा है, वो भी गलत है. डॉक्टर इवन की दिल्ली में भी ऐसा किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी ऐसा किया गया, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा. डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर हेल्थ केयर वर्कर्स हु आर फोर्स्ड टू वर्क लॉन्ग आवर्स ट्रीटिंग पेशेंट्स इन्फेक्टेड विद हाईली इन्फेक्शियस वायरस, और जो डॉक्टर जो रिलेटिव्स हैं या डॉक्टर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है. ये इसके लिए गवर्नमेंट ने कल पनिशमेंट जो है इंक्रीज करी है. सिंबॉलिक जेस्चर्स, राइटर बहुत ही क्रिटिकली कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में कि symbolic gestures such as clapping hands and lighting candles in recognition of their selfless service during these trying times do not bolster their morale as much as understanding and support does. यानी कि इनको जो है genuine support की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ एक symbolic gestures की ताली बजाओ या खड़काओ, ये सब नहीं होना चाहिए, right? So this is there. Okay, so this is there. Now coming here, ICMR has advised states to whom it distributed kits that they could be used for surveillance testing rather than to make medically important decisions. Narrowing down the test to reliable methods is the challenge, and the WHO along with its collaborating centers is working to identify them. India should remain focused on identifying tests. So ICMR की जो टेस्ट किट्स हैं उनके ऊपर जो क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि टेस्ट किट्स जो हैं स्टैंडर्ड नहीं है और इंडिया में नहीं बनाई जा रही है, ये सब चीज़ें जो उठ रही हैं, ICMR ने स्टेट्स को ये एडवाइस किया है जिनको ये किट्स दी गई हैं. स्टेट्स ने पहले तो क्वेश्चंस उठाए हैं कि जो किट्स हैं वो डिफेक्टेड हैं, राइट? जो किट्स हैं वो डिफेक्टेड हैं, तो इसीलिए ICMR has advised states to whom it distributed the kits that they could be used for surveillance testing rather than to make medically important decisions. Okay, so this is there. Narrowing down the test to reliable methods is the challenge, and the WHO along with its collaborating centers is working to identify them. The results will be critical, and all countries, including the US White House Coronavirus Task Force, are looking at surveillance. तो यहाँ पे ICMR ये कह रही है कि सर्वेलेंस के लिए जहाँ तक क्वेश्चन है वो ये किट्स ठीक हैं. अगर आप ये कहें कि मास टेस्टिंग और इसके लिए, तो ये नहीं, हम सुझाव नहीं दे रहे इसके लिए. So looking at surveillance, the process that will determine the status of population on COVID-19. An exit from lockdown and other public health measures depend on such testing. India should remain focused on identifying tests that work well. This requires, and इसके लिए क्या चाहिए? Close integration with the efforts launched by diagnostic regulators in the US, Europe and China. Okay, who have used emergency provision kits. Just 1 minute. So please share the link of the DNA again and again. You keep on sharing as many people are joining. Pranav, I would request you to please do the needful. In the immediate context, the message should go out to the states that rapid tests cannot substitute for RT-PCR to diagnose infection. It is by no means clear that antibodies developed in response to COVID-19 provide long-term protection against reinfection. Okay, तो ये भी क्लियर नहीं है. मतलब ये आर्टिकल थोड़े से अवेयरनेस के लिए थे कि क्या कहा जा रहा है.
There are reports indicating that some vendors of rapid testing devices in China have run afoul of, यानी कि चाइना सरकार के जो चाइनीज गवर्नमेंट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग वहां पे रैपिड टेस्टिंग किट्स नहीं बनाई जा रही हैं, स्टैंडर्ड्स को दरकिनार किया जा रहा है. दे आर रनिंग अ मॉक दी स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द चाइनीज हेल्थ अथॉरिटीज. तो वो अगर इंडिया में आ जाएंगे, वो एक्सपोर्ट किए जाएंगे, इंडिया में इंपोर्ट किए जाएंगे, तो दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर India as well, right? So those of you who are new here to my daily news analysis, this daily news analysis is done on a daily basis on Unacademy's YouTube channel, Unacademy Articulate. जिन लोगों को नहीं पता है Unacademy यहाँ पे, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ. 24th April editorial. I'm so sorry for the slip of tongue. Now, industries cannot be forced to pay wages. Panel का ये कहना है, members of Parliament Committee sees COVID-19 lockdown as natural calamity, says units not responsible for layoff must not be affected. हो क्या रहा है? इंडिया में एक इंडियन लेबर कोड बनाया जा रहा है. इंडिया में एक लेबर कोड बनाया जा रहा है जिसके तहत इंडिया की एग्जिस्टिंग लेबर लॉज को मर्ज किया जाएगा. क्यों मर्ज किया जाएगा? क्योंकि इसे हम क्या कह रहे हैं, दिस हैज बीन लेबल्ड एज द बिगेस्ट रिफॉर्म of after LPG reforms 1.0. LPG reforms, liberalization, privatization and globalization reforms 1.0 had taken place in the 1990s. Liberalization किया हमने, बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया, एंड एयरवेज में, एविएशन में, राइट. तो ये सब चीजें की गई ऑलरेडी. लेकिन उसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमारे लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स के बाद रिफॉर्म्स काफी ज्यादा जो है स्टैगर्ड वे में आने लगे, स्लो एंड फार एंड फ्यू इन बिटवीन. जैसे कि अभी हम कहें कि जीएसटी का रिफॉर्म है, ये एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद पहला बड़ा ऐसा रिफॉर्म है जो किया गया है. एम आई राइट? कि मतलब एक टैक्सेशन स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देना, और धीरे धीरे से हम एफडीआई 49% से 74% कर रहे हैं. ये सब क्या है? लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स ही हैं. लाइसेंस राज को हमने 1992 में, 1993 में अबॉलिश कर दिया, लेकिन उसके बाद प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे से कर रहे हैं, और उसके बाद एफडीआई लिमिट्स को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की डायरेक्शन में गवर्नमेंट लेके जा रही है. तो ये सब चीजें तो हो ही रही हैं. ओके, तो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग. जस्ट 1 मिनट, ये जो YouTube पे प्रॉब्लम आ रही है, लेट मी जस्ट सेट इट. जस्ट अलाउ मी 1 मिनट गाइस. सो here we are, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म्स के बाद अब क्या हो रहा है कि इन रिफॉर्म्स का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज हो. जो भी इकोनॉमिक एरिना में रिफॉर्म्स गवर्नमेंट करती है, उसका पर्पस क्या है? कि हमारी ग्रोथ इंक्रीज हो. अब अगर ये ग्रोथ इंक्रीज नहीं हो रही, तो इसका मतलब हम रिफॉर्म्स नहीं ले रहे. अब रिफॉर्म्स कहाँ पे होने चाहिए? लेबर सेक्टर में. लेबर सेक्टर में अगर मान लो कि मेरी कोई फैक्ट्री है, तो मैं अगर एम्प्लॉयज़ को हायर करना चाहता हूँ, हायर तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब उस फैक्ट्री से मैं उन एम्प्लॉयज़ को निकालूंगा, या मान लो कि जैसे कोरोना वायरस के टाइम पे ऐसा सिचुएशन बन रही है कि सैलरीज नहीं पे कर पा रही हैं फैक्ट्रीज, तो अगर फैक्ट्री से उनको हटाना है या रिट्रेंच करना है या ले ऑफ करना है, तो उसमें सरकार की परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है. अगर मान लो कि कोई फैक्ट्री का नेचर ऑफ वर्क सीजनल है, मान लो कि टाटाज कोई कार बनाना चाहते हैं, उन्होंने कार बनाई नैनो, अब वो कार मान लो कि नहीं बिक रही, या उनको वो प्लांट क्लोज करना है, तो ऐसी कोई फैक्ट्री जहाँ पे 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उसके लिए परमिशन लेने की ज़रूरत होगी. जिस फैक्ट्री में 100 से ज़्यादा वर्कर्स, 100 से ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, दे वुड हैव टू, द प्राइवेट प्लेयर वुड हैव टू सीक द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट. इसीलिए हो क्या रहा है, प्राइवेट प्लेयर, टाटाज, अंबानीज, अदानीज या छोटी बड़ी सभी कंपनीज
ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली वर्कर को हायर नहीं कर रहे, ये वर्कर को कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हायर कर रहे हैं। समझ में आया? वर्कर इज बीइंग हायर्ड थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, वर्कर इज बीइंग हायर्ड ओके ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यानी कि अगर टाटास के खिलाफ कोई वर्कर केस करेगा कि मेरे को हटा दिया, टाटास ये कहेंगे कि दिस एम्प्लॉय दिस वर्कर वाज नॉट ऑन द पेरोल, ये गवर्नमेंट ये टाटास के रिकॉर्ड पे कहीं था ही नहीं, तो ये तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया था। कॉन्ट्रैक्टर जो है जुडिशियल उसमें फंसेगा, कंपनी नहीं, कंपनी को बचा लेने के लिए, राइट। इस चक्कर में क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टर इज एक्चुअली अ दलाल हेयर, ही इज अ कमीशन वो अपना ले रहा है। अगर इस काम को कॉन्ट्रैक्ट पे किया जा रहा है तो 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन सभी के सभी वर्कर्स को 100 वर्कर्स को सिर्फ 2.5 लाख दिए जा रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्टर इसमें 2.5 लाख रुपए खुद रख ले रहा है। कंपनी को भी ये महंगा पड़ा, है ना। कंपनी क्या कर रही है, एक वैसे तो ये लेबर का इंश्योरेंस हो गया कि भाई लेबर हमारे खिलाफ अगर केस करेगी उससे बचने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लिया, है ना। ना तो इसमें वर्कर का फायदा हुआ, ना टाटास का फायदा हुआ, और अल्टीमेट कंज्यूमर को भी जो गुड का मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगा, लागत बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वुड आल्सो इंक्रीज, राइट। तो दिस इज व्हाई दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दिस इज वाई इट इज बीइंग सेड कि अब लेबर रिफॉर्म करने की जरूरत है। अब जब हम लेबर रिफॉर्म करते हैं, देखो ये है सीडी किसकी, प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर करियर प्रोग्रेशन, करियर प्रोग्रेशन कुछ ऐसा कि कितनी भी आसमान की ऊंचाई छू सकते हो। यहाँ पे सैलरी है 25,000, यहाँ पे सैलरी है 2.5 लाख, यहाँ पे मतलब जो जंप है सैलरी में वो बहुत ज्यादा है। और ये है हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, हर साल 1,000 रुपए की इंक्रीमेंट, 25,000 सैलरी है तो सीधा 26,000 हो जाएगी, 27,000 हो जाएगी। धीरे धीरे से प्यार को बढ़ाना है यहाँ पे, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पे गिरने का खतरा कम है क्योंकि ऊंचाई कम है। और प्राइवेट सेक्टर में क्या है, गिरोगे तो फिर बिल्कुल नीचे गिरोगे, राइट। अगर जॉब चली जाएगी, प्राइवेट सेक्टर में रिसेशन होगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में क्या है कि कोई बात नहीं, सबका साथ सबका विकास, राइट। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि जॉब नहीं जाएगी, कभी भी कुछ ऐसा नहीं होगा कि जॉब चली गई या कुछ ऐसा। इसीलिए इसीलिए ये किया जा रहा है कि वर्कर्स को ये कहा जा सके कि आप जो जॉब है वो आप यहाँ पे कुछ इस वे से करें प्राइवेट सेक्टर को, कि प्राइवेट सेक्टर अब ये चाह रहा है कि और रिफॉर्म्स किए जाएं, और ज़्यादा रिफॉर्म किए जाएं, ताकि वो इनको कभी भी हायर एंड फायर कर सकें। प्राइवेट सेक्टर में तो हायर एंड फायर पॉलिसी रहती है, हायर एंड फायर पॉलिसी को लागू करने की बात यहाँ पे की जा रही है। अब अगर हम इस रिफॉर्म को करेंगे तो गवर्नमेंट को इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अगर ये वर्कर नीचे गिरता है, नीचे गिरने का मतलब ऐसा नहीं है कि फिजिकली नीचे गिर गया, सिर फूट गया, वो सब नहीं। फिजिकली यहाँ पे गिरने का मतलब ये है कि इफ दैट एम्प्लॉय इज रिट्रेंच्ड और लेड ऑफ, यानी कि इफ ही लूजेज हिज जॉब टेम्पोरेरीली, तो उसके लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी चीज़ों की बात करी जा रही है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड जो है उसका डिडक्ट होगा, पेंशन होगी, हेल्थ इंश्योरेंस होगा। हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया है कि नहीं, जैसे कि पहले था राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, और अब क्या दिया गया है, अब क्या दिया गया है, आयुष्मान भारत, राइट। आयुष्मान भारत दिया गया है ना। तो ये सब चीजें की जा रही हैं वर्कर्स, प्राइवेट मतलब गरीब लोगों के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए पहले ये सब जाल बुना जा रहा है। इसको हम बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी नेट, SSN, सोशल सिक्योरिटी नेट। क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर में हायर पैकेज है। अगर आज आप उबर ओला के ड्राइवर को देखो, उसमें बहुत अच्छी सैलरी उसे मिल रही है, राइट। जोमेटो, ये सब जो बॉयज हैं, इनको कभी भी हायर किया जा रहा है, कभी भी फायर किया जा रहा है, जोमेटो, अमेजन, फ्लिपकार्ट। लेकिन क्या जब इनकी जॉब चली जाएगी, व्हेन दे वुड बी जॉबलेस, वुड देयर बी एनीबडी टू टेक केयर ऑफ दैट? यस। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये सब काम कर रही है। क्लियर? तो हमें पहले लेबर रिफॉर्म्स लाने से पहले, LPG रिफॉर्म्स जिसे हम बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स लाने से पहले हमें ये करने की जरूरत है। Am I clear? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, दिस विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम। गाइज 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को इनको, जो लोग अनअकैडमी यूट्यूब पे चैनल पे देख रहे हैं, दोज जस्ट आई एम राइटिंग,
राइट। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको ये मैसेज दिख जाएगा, अनअकैडमी प्लस पे स्पेशल क्लास। बार बार मेरी टीम लिंक शेयर कर रही है, बट इनको नहीं पता, जिनको उनको बताते रहो तुम लोग, साइड में यूट्यूब थोड़ा सा खोल लो, उनको बताते रहो, समाज सेवा अच्छी चीज़ है। नाउ इज इट क्लियर? एनी डिस्क्रिशन? अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, लॉज को बार बार चेंज किया जा रहा है। ओके, प्लीज लिंक शेयर कर दो, इस क्लास का लिंक शेयर कर दो सभी लोग। सो दिस इज देयर विद द इंट्रोडक्शन। तो अब क्या किया जा रहा है, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, इन सभी लॉज को एक साथ मर्ज करके एक कोड बना दिया जाएगा। कोड क्या है वो? लेबर कोड जिसे हम बोलेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे इंडियन पीनल कोड है, क्या है वो? इंडियन पीनल कोड इज लाइक अ कंपाइलेशन। इंडियन पीनल कोड इज लाइक a compilation. Okay, Indian Penal Code is like a compilation of all the penal laws in India. तो जैसे penal laws का compilation है, वैसे ही लेबर कोड। अब अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मान लो कि मेरी एकेडमी है जतिन वर्मा IAS एकेडमी, लाइक दैट, राइट? तो अगर मेरे को लेबर लॉज में मेरे जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए मुझे सारी लॉज पढ़नी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रेड यूनियंस लॉ, ट्रेड यूनियंस एक्ट अलग पढ़ूंगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ये एक्ट अलग पढ़ूंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लेबर स्पेशलिस्ट हायर करना पड़ेगा, ताकि मैं पढ़ा सकूं और वो ये सब पढ़ता रहे, है ना? सो दैट आई शुडंट बी बॉदर्ड अबाउट दिस। लेकिन उसके लिए मुझे उसे 25,000 सैलरी देनी पड़ेगी। तो एक छोटे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत है, इसीलिए ये कोड बनाया जा रहा है। लॉ वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा इन नवंबर लास्ट ईयर एंड रेफर टू अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर। अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर का क्या कहना है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने अपनी कल की ये जो क्लिपिंग है हम इसे डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि चेयरपर्सन है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लेबर के, इन्होंने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। इनका ये कहना है, इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज लाइक COVID-19, लाइक फ्लड, और लाइक ओके, और लाइक एनीबडी एल्स, दे कैन कम डायरेक्टली ऑन टू यूट्यूब। Just 1 minute. So this is there. Industrial code makes it incumbent upon employer to pay 50% wages to the workers or employees who are laid off. अब ये क्या है? सोशल सिक्योरिटी नेट। यानी कि अगर ये वर्कर गिरेगा, इसको हटाया जाएगा, तो उसके लिए भी 50% वेजेस इसे दी जाएं। यानी कि यहाँ पे ये अगर 1 लाख कमा रहा था और अगर काम नहीं है तो भी इसे 50,000 दिए जाएं, 50% दिए जाएं, राइट? Okay, so this is there. Now coming here, this is the provision। ये सब प्रोविजन इसमें रखे जा रहे हैं। इसको कमेटी ने कुछ कुछ चेंज करने को बोला है कि कैसे इसे चेंज किया जाए। कि अगर किसी इंडस्ट्रियल कोड जो कि ड्राफ्ट स्टेज पे है, जो कि अभी पास नहीं हुआ, इट मेक्स इट इनकम्बेंट अपॉन द एम्प्लॉयर टू पे 50% ऑफ द वेजेस टू द वर्कर्स, employees who are laid off due to shortage of power, raw material, coal, such instances for 45 days. The committee has expressed reservations on the payment of prescribed percentage of wages to the workers in the event of closure of an establishment due to natural calamity. In case of natural calamities like earthquake, flood, super cyclone, etc., which often results in closure of establishment for a considerably longer period, जैसे अभी 2 महीने हो गए कोरोना वायरस को लगभग, without employer's fault, payment of wages to the workers may be unjustifiable। कमेटी ये कह रही है कि वर्कर्स की ऐसे हालात में जब नेचुरल कैलामिटी है, उनका बोझ जो है, कमेटी ये कह रही है कि एम्प्लॉयर पे डालना, फैक्ट्री पे डालना, कंपनी पे डालना इनअप्रोप्रिएट होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ इट। Asked if the COVID-19 and the ongoing 40-day lockdown under which almost all industries have been shut would also count as natural calamity, committee said it should। Okay, कमेटी ने ये कहा कि it should count as a natural calamity, और इसका सैलरी का भार जो है एम्प्लॉयर पे नहीं होगा, right? Basic idea about our recommendations is that industry should also not be forced when the situation is beyond their control।
अब कुछ मेंबर्स ने इसमें डिसेंट नोट दिया है. Members said that recommendations are unfortunate, especially in the present context, given the present situation where the entire nation is fighting against monstrous attack of novel coronavirus. तो ये सब चीजें कही जा रही हैं. तो ये है इसका बैकग्राउंड भी हमने यहाँ पे कवर किया है, राइट? Okay, so this is there. Now, coming here, back here. यस, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट रहेगा. इसमें हमने बैकग्राउंड कवर किया है. ये बैकग्राउंड आप थोड़ा सा इसमें कवर कर लेना. डीमोटिवेटिंग रहेगा. अब आते हैं मनरेगा की वेजेस की डिटेल्स पे. जैसा मैंने आपको बताया कि मनरेगा में दिस इज अ प्रॉब्लम कि मनरेगा के अंडर 15 डेज में जो वेजेस दी जानी चाहिए वो नहीं दी जा रही हैं, क्योंकि सरकार के पास भी पैसे नहीं है, राइट? तो अब मिस्टर भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका ये उन्होंने यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को प्रेम पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सेंटर शुड अलाउ द पेमेंट ऑफ MGNREGS वेजेस इन द फॉर्म ऑफ फूड. ओके. So Mr. Baghel said the state was employing 5 lakh workers every day under the scheme. He said the livelihood of over 62.5 lakh persons was dependent on the scheme, which made it essential. 62 लाख 50,000 लोग जो हैं डिपेंडेंट हैं छत्तीसगढ़ में इस स्कीम पे, विच मेड इट एसेंशियल दैट द वर्क कॉन्टिन्यूड. काम को मनरेगा के अंडर वेजेस देना, काम देना सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. विद इन 15 डेज अगर सरकार काम नहीं देती तो फिर ये प्रॉब्लम है, राइट? Okay, so this is there. The chief minister proposed that handing the workers food grains directly was better due to lockdown and continuing scare of COVID-19. Once we credit the MGNREGS wages, the worker will have to go to the banks to withdraw the money. यानी कि अगर MGNREGS wages जो है रुपए में दी जाएंगी कैश में, तो वो बैंक जाएगा, बैंक में उसे और रिस्क होगा. ये सब चीज़ें कह के चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के ये कह रहे हैं कि उन्हें डायरेक्टली राशन दे दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है. छत्तीसगढ़ में ज़्यादा बैंक ब्रांचेस नहीं है, ब्रांच पेनिट्रेशन ये नहीं है, राइट? सो दिस इज देयर. सो okay, so this is there. Due to this, there are often the problems like link failure and workers have to contact the branch many times to withdraw the amount. Social activist Nikhil Day from Mazdoor Kisan Shakti Sangathan said payment should continue as required by the law. Okay, payment should continue as required by the law. Or workers were paid in cash for the first 5 years after the scheme was launched. It was only in 2011 that the government started bank transfers. अब ये भी एक प्रपोजल है कि कैश में. मजदूर किसान शक्ति संगठन जो कि एक एनजीओ है, उनका कहना है कि उनको कंटिन्यू करें कैश में पे करना. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये समझेंगे कि मनरेगा में एक PIL फाइल किया गया था, राइट? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल किया गया डिमांडिंग फुल वेजेस फॉर ओवर 7.6 करोड़ एक्टिव जॉब कार्ड होल्डर्स. अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इस मनरेगा पोर्टेबल स्कीम, अगर मैं मान लो कि बिहार से हूँ और मैं बिहार से पंजाब में जाता हूँ, तो क्या मैं मनरेगा का अपना जॉब कार्ड पंजाब में यूज कर सकता हूँ जॉब लेने के लिए? इज मनरेगा अ पोर्टेबल स्कीम और नॉट? प्लीज आंसर. And to those of you who are new here, those who do not know about the daily news analysis happens on a daily basis on Unacademy Articulate channel. YouTube channel है, right? क्योंकि ये काफ़ी लोग इस पे यहाँ पे Unacademy पे नहीं देख सकते, नहीं ज्वाइन कर पाते ड्यू टू लो इंटरनेट बैंडविड्थ एंड ऑल.
तो अन अकेडमी आर्टिकुलेट, आप देखो सिंपल गूगल पे जाओ, गूगल बाबा को बोलो कि जतिन बाबा के बारे में बताओ, राइट? गूगल पे आप सर्च करोगे जतिन वर्मा डेली न्यूज एनालिसिस, you'd be able to find out, right? So this is it. Now coming here, Manrega during 21 day nationwide. Yes. So don't worry, जो लोग YouTube पे नहीं देख पाए, this video is already getting downloaded, so we'll be uploading it after some time, right? So this is there. PIL में टॉप कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया है यूनिफॉर्म गाइडलाइंस हो सभी स्टेट्स के लिए, यूटीज, that for the entire duration of the lockdown, at least all active and registered job cards under Manrega Act will be deemed to be at work. उनको ये माना जाए कि वो काम कर रहे हैं, भले कि वो कोरोना वायरस के चलते काम नहीं कर रहे हैं, राइट? तो ये चीज यहाँ पे कही जाएगी. एंड अकॉर्डिंगली मेक फुल पेमेंट टू देयर वेजेस एट द अर्लीस्ट. It also want the apex court to increase the entitlement from 100 days of work to 200 days per household to support rural livelihoods during the emerging economic crisis. It also requested the Supreme Court to direct the center and the states to issue individual temporary job cards within 15 days to all migrants who have returned from the cities to their native villages. Now, responsibilities of state governments in Manrega. Frame rules on matters pertaining to the state responsibilities. State governments क्या करती हैं? रूल्स फ्रेम कर पाती हैं. सेटअप स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल. तो ये आपको पीटी के लिए इस बार पता होनी चाहिए, ये डिटेल्स अगले साल तक भी ये पता होनी चाहिए. वाई? रीजन इज सिंपल, रीजन इज प्रीटी सिंपल दैट काफी ज्यादा मनरेगा को लेके पीआईएल फाइल की जा रही है. छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, ओडिशा में कुछ, बिहार में कुछ और पंजाब में कुछ. तो मनरेगा काफी ज्यादा न्यूज में है, इसीलिए हमें इसे थॉरली प्रिपेयर करना होगा. स्टेट लेवल मनरेगा इंप्लीमेंटेशन एजेंसी सेटअप करना स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. तो सेटअप अ स्टेट लेवल मनरेगा सोशल ऑडिट एजेंसी. मनरेगा में सोशल ऑडिट मैंडेटरी है. It is mandatory to do the social audit in Manrega. Establish and operate State Employment Guarantee Fund. State Employment Guarantee Fund को establish करना और operate करना. It determines the order of priority of the workers, priority of the works in the meetings of Gram Sabha. Role of Gram Sabha क्या है? Please note it down. Role of Gram Sabha is even important. ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी की क्या किया जाएगा? पॉन्ड बनाया जाएगा मनरेगा के फंड से, या सड़क बनाई जाएगी, या पंचायत भवन बनाया जाएगा? ये सब ग्राम सभा डिसाइड करती है, राइट? तो मॉनिटर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स विद इन ग्राम पंचायत. मॉनिटरिंग का काम भी मनरेगा में ग्राम पंचायत ये करती है, राइट? ग्राम पंचायत को मॉनिटर करना कि क्या ग्राम पंचायत जो पंचेस हैं, 5 पंचेस, उन पे पंचेस मारना कि मतलब आप काम कर रहे हो कि नहीं. और मनरेगा में सोशल ऑडिट, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे एक बॉडी का नाम लिया गया, नोट कर लो इसका नाम, मजदूर किसान शक्ति संगठन. ये सोशल ऑडिट करती है, ये एनजीओस, क्योंकि मनरेगा में काफी गड़बड़ घोटाला होता है और ये सब. और मनरेगा में क्या होता है कि ऑडिट जो है सीएजी नहीं कर पाते हैं, राइट? क्योंकि जो रूरल हमारी बॉडीज हैं उनका ऑडिट सीएजी के कंट्रोल में, सीएजी की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, इसीलिए सोशल ऑडिट हैज बीन मेड मैंडेटरी. और सोशल ऑडिट की डिटेल जो है गांव में कुछ इस तरह से बोर्ड पे डिस्प्ले की जाती है कि किसको कितना वेतन मिला, किसको कितनी सैलरी मिली मनरेगा के अंदर. तुकाराम और फुकाराम और बन्नो देवी, ये सब के नाम यहाँ पे लिखे जाते हैं और वो लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि उसे 200 मिले या 2000 मिले, ताकि अगर कोई किसी का मिसमैच है तो वो यहाँ पे दर्ज किया जा सके. लेकिन अभी क्या है कि बैंक ट्रांसफर हो रहा है तो इजी हो रहा है. और क्या होता था, मनरेगा के अंदर सड़क बनती थी मनरेगा फंड से, लेकिन वो बनती नहीं थी. समझ में आया? वो सड़क सिर्फ पैसे खाने के लिए बनती थी. तो इसीलिए अब जीपीएस टैगिंग हो रही है कि एसेट बनाया गया है, तो क्या यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को वो दिख रहा है कि एसेट बना है कि नहीं. गूगल वाला जो जीपीएस टैगिंग होता है ना, जो आप मैप में देखते हो, वैसे वाला जीपीएस टैग यहाँ पे लगा दिया जाएगा. उससे ये पता लग जाएगा कि हाँ सड़क वाकई ही बनी. ताकि कुछ ऐसे गांव हैं इंडिया में, कुछ ऐसे विलेजेस हैं इंडिया में जो कि सिर्फ सरकार के डॉक्यूमेंट्स में है. समझ में आया? एक विलेज का नाम है गुमनाम, वो विलेज है ही नहीं, राइट? तो उसके लिए वो विलेज में जो एसेट्स हैं वो सब भी गुमनाम. तो ऑन पेपर जो सड़कें बनती हैं उसके लिए ऑडिट के लिए ये सब किया जा रहा है मनरेगा में, ताकि घोटाला ना हो, राइट?
तो अब आगे चीज़ें देखते हैं। मनरेगा जॉब जो है 14 अप्रैल की ये न्यूज़ है। 14 अप्रैल के डीएनए में हमने ये सब इश्यूज कवर करने की मैंने बात कही थी, लेकिन मैं नहीं कवर कर पाया था। तो एम्प्लॉयमेंट अंडर, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जैसे स्टैटिक और करंट चीज़ें आती है ना, कि कभी स्टैटिक चीज़ ज़्यादा हो जाती है, करंट उसके मुकाबले हम नहीं कवर कर पाते। तो इसीलिए डे बाय डे आई विल ट्राई कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग। अब जैसे हम मनरेगा के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको भी हम स्टडी कर लेते हैं यहाँ पे। 2009-10 मनरेगा वेजेस वर ओनली 90% ऑफ द मार्केट वेजेस, लेकिन गवर्नमेंट ने दिसंबर 2019 में एक अच्छा डिसीजन लिया जिसके तहत मनरेगा वेजेस को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबर से लिंक किया गया है। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? recent news about मनरेगा। दिसंबर 2019 में दिस पॉजिटिव स्टेप वाज टेकन, और ये इससे क्या होगा कि मनरेगा वर्कर्स को जो वेजेस हैं वो अच्छी मिलने लग जाएंगी। 375 रुपए एक रिस्पेक्टेबल वेज मिलने लगेगा, राइट। 2017-18 PLFS estimates show that private market wages for males were higher than the मनरेगा wages by 74% and female market wages were higher than मनरेगा wages by 21%. Clear? So this is there. Now, significance of MG Narega. The objective of the act is to enhance the livelihood security. Please note it down. Prelims में अगर ये आए कि income security नहीं, livelihood security in the rural areas by providing at least 100 days of guaranteed wage employment in a financial year to every household whose adult member volunteer to do unskilled manual work. मनरेगा stands out in its worker-centric legislation. तो मनरेगा एक rights-based legislation है, और आपको ये भी बताना है यहाँ पे कि मनरेगा में क्या it is a fundamental right to job, right to एम्प्लॉयमेंट, ये फंडामेंटल राइट है या सिर्फ लीगल राइट है? प्लीज आंसर दिस. Okay, the scheme is meant to be demand driven in the sense that government is mandated to provide work within 15 days of worker seeking work. Otherwise, the worker is entitled to an unemployment allowance. A second key provision of the act pertains to payment of wages within 15 days. वेजेस विद इन 15 डेज मिल जानी चाहिए। यानी कि देखो, अगर मैंने काम मांगा 1 फरवरी को, इफ आई एम आस्किंग वर्क ऑन 1st of February, तो मुझे 15th Feb तक काम मिल जाना चाहिए। आई शुड बी गेटिंग दी वर्क बाय 15th of February. इफ आई एम डिमांडिंग वर्क within 15 days, I should get work. After the completion of the work, I should get 15 days of wages within, I should get the wages within 15 days. जैसे कि मैंने जो काम 16 फरवरी को किया था उसकी wages मुझे 28th Feb तक मिल जानी चाहिए. Clear? However, both these provisions have been routinely violated. A second provision of the act pertains to payment of wages within 15 days. तो ये आपको ध्यान रखना है. Another major issue, budgetary allocation over the years has been insufficient. पैसे जो हैं allocate किए जा रहे हैं वो कम आ रहे हैं वो पैसे. Okay. Just 1 minute, guys. Clear? So जो लोग नहीं देख पा रहे हैं YouTube पे, this will be uploaded on YouTube after approximately 2 hours from now. Another concern is about stagnating मनरेगा wages. Delinking of मनरेगा wage rates from Minimum Wages Act 1948 has contributed to this. So this is there. लॉकडाउन ensured growth of cases remained linear. तो गवर्नमेंट का ये कहना है लॉकडाउन की वजह से ये इंश्योर हो पाया कि केसेस धीरे धीरे से बढ़ें, एकदम से केसेस इंक्रीज नहीं हो, राइट. सो दिस इज देयर. अब ये फैक्चुअल है, इसको हम ज़्यादा नहीं करेंगे. कोरोना वायरस वाली न्यूज़ जो है फैक्चुअल चल रही है आजकल, दो इट इज़ अ सेंसिटिव इशू, बट एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट मैं इसको बार बार रिपीट करता रहूँ, आपका टाइम वेस्ट होगा इसमें. Okay, so this is there. Now, India's trajectory in COVID-19 cases is following the United States and likely to similarly reach a plateau rather than peak soon. इंडिया की जो ट्रेजेक्ट्री है यूएस की ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रही है. तो cases is following United States. Since there were already signs of some community transmission in India, it was more likely to follow the trend of US and Europe rather than limit cases to a low number.
चाइनीज एक्सपर्ट का ये कहना है कि इंडिया में भी सिचुएशन जो है और ज़्यादा वर्स हो सकती है. ओवरऑल सिचुएशन इन इंडिया में बी सिमिलर टू दैट ऑफ यूएसए. The measures of each state in US are different. Some states are strict, some have resumed work. India has to consider how the economy functions and how the epidemic can be controlled. So it does not pay a high price for epidemic prevention. Chinese expert का India को suggestion. India's approach to adopt a long-term strategy made sense, including its approach to testing. While India's approach in tackling the COVID-19 has been different from China's sweeping lockdowns and mass quarantines, India's strategy was understandable for its national conditions. Every country should find a way that suits them according to their situation. China's lockdown or Australia's approach of locking down until very low numbers of cases were reached was unlikely to be replicated. China का 100% लॉकडाउन और ऑस्ट्रेलियाज अप्रोच ऑफ लॉकिंग डाउन. ऑस्ट्रेलिया का क्या अप्रोच था कि लॉकडाउन तब तक चलाओ जब तक बहुत ही कम नंबर ऑफ न्यू केसेस रिपोर्ट होने लगेगा, यानी कि जब केसेस नियर 5-10 आ जाएंगे तब इसको ये किया जाएगा. तब लॉकडाउन को ऑस्ट्रेलिया ने लिफ्ट किया. अब इंडिया में तो पता ही नहीं है कि केसेस कितने हैं कितने नहीं, है ना. हमारी कंट्री ने एक बहुत सही अप्रोच लिया है कि टेस्ट ही मत करो. टेस्ट करोगे तो केसेस बढ़ेंगे तो पैनिक होगा, लेकिन हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज भी नहीं है. डीएनए के नोट्स कैसे बनाने हैं? डेली द हिंदू न्यूज एनालिसिस के नोट्स रेगुलरली सुनते रहो, दिमाग में छपता जाएगा. एक तो ये तरीका है, राइट. इट विल गेट इम्प्रिंटेड इन योर माइंड इफ यू आर रेगुलर विद द डेली न्यूज एनालिसिस. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, there will be a DNA, there will be a special video by Sunday, on Sunday, I mean day after tomorrow, there will be a this thing जिसमें कि हम ये देखेंगे कि एक स्पेशल वीडियो रहेगा कि हाउ टू टेक मैक्सिमम एडवांटेज आउट ऑफ डेली द हिंदू न्यूज एनालिसिस. क्लियर? एज सिंपल एज दैट. रादर देन बार बार मैं इसको क्लास को डिसरप्ट करूं तो ये ज़्यादा सही रहेगा. इंडिया में नॉट बी एबल टू कीप केसेस टू एज लो एज डिड मैनी प्लेसेस इन चाइना. चाइना में काफ़ी प्लेसेस में नंबर बहुत लो था. इंडिया इस नंबर को लो नहीं रख पाएगा. ये एक वार्न कर रहे हैं, फॉर वार्निंग दे रहे हैं चाइना के हेल्थ स्पेशलिस्ट. सो दिस इज देयर. नाउ वर्क गोज ऑन. Do not do not look only at the number of cases. There have been hundreds of those of cases in the US and Europe, more than in India. The lives of Europeans still has not stopped, and they are preparing to resume work, school, and businesses. The global pandemic was broadly under control. है, and as the number of diagnosed cases increased, the mortality rate would फर्दर रिड्यूस. यानी कि डायग्नोसिस अगर टाइम पे हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, ये पता लग जाएगा कि एक पर्सन कोविड-19 से ऑलरेडी अफेक्टेड है, तो उसको बचाने में हम सक्षम रहेंगे, राइट. तो मोर्टेलिटी रेट कम आएगा, मॉर्बिडिटी रेट जितना ज़्यादा हम पता लगा पाएंगे, टेस्टिंग जितनी ज़्यादा कर पाएंगे, राइट. So this is it. Then on the question whether the Indians had a high immunity than the rest of the world, the matter that has been widely debated in China. The experts said the incidence rate in China suggested this was not the case. अब आते हैं former bureaucrats. Former bureaucrats flagged minority harassment in letter to Chief Minister and Lieutenant Governors. Former bureaucrats ने जो कि retired IAS ऑफिसर्स हैं, IPS हैं, इसमें इन्होंने एक लेटर लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को, कि ये जो मुस्लिम्स का सोशल बॉयकॉट हो रहा है तबलीगी जमात के बाद, इसे रोका जाए. इररेस्पॉन्सिबल मीडिया पे भी इन्होंने कुछ कहा है. अब ऐसे केस में रोल ऑफ मीडिया, चैन से सोना है तो जाग जाओ टाइप्स मीडिया जो है, उसका रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, डिबेटेबल हो जाता है, राइट. सार्स वाला पॉइंट लास्ट स्लाइड में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस आउटब्रेक वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सार्स, कुछ काम का नहीं है, राइट. सो दिस इज इट. अ ग्रुप ऑफ 101 formal civil servants 101 former civil servants has written to chief ministers and lieutenant governors of different UTs of all the states and UTs, expressing anguish over the reports of alleged harassment of Muslims in some parts of the country, particularly after the meeting of Tabligh Jamaat in Delhi's Nizamuddin in March.
प्रिवेंटिंग सोशल बॉयकॉट, एक कम्युनिटी को अगर आप ऐसे सोशली हैरेस करेंगे कोई लोग या कुछ भी, तो उससे प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी। तो ये रिटायर्ड फॉर्मर ब्यूरोक्रेट जो हैं, दे वांट द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट all entitlements including medical and hospital care, ration and financial assistance are available equally to all those in need. Okay, so this is there, just 1 minute. Just give me 1 minute, guys. There are some students struggling on YouTube. So this is there now. It did not subscribe to any particular political ideology, rather focused on issues having a bearing on the constitution. तो ये इनका कहना है कि सोशल बॉयकॉट और ये सब अवॉइड किया जाए इस टाइम पे। द जमात वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर इग्नोरिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब ठीक है, उनसे गलती हुई है, लेकिन एक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के चलते आप ऐसा नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर जमात के चलते, एक पर्टिकुलर कॉन्ग्रीगेशन के चलते आप पूरी कम्युनिटी को ऐसे socially exclude nahi kar sakte, right? So this is it. Then coming here, although this was hardly the only incident of such gatherings, both political and religious sections of the media hastened to give a communal color to COVID-19, including attributing motives to Tabligh Jamaat in spreading the virus to different parts of the country. Irresponsible media, the group criticized Tablighi Jamaat action of ignoring the Delhi government's advisories on organizing such an event. Yes guys, DNA will be continued on YouTube only because यहाँ से शायद बैकएंड टीम का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने शायद अच्छे से नहीं बताया कि ये दोनों की स्ट्रीमिंग कैसे होगी, राइट? ये जो ग्लिच आ रहा है शायद इस वजह से आ रहा है कि दोनों का डबल स्ट्रीमिंग इज नॉट प्रॉपर. Then mob attack by extremist groups affiliated with the ruling class against minority communities especially continued throughout the year amid rumors that they sold, bought, or killed cows for beef. Instead of taking prompt legal action against attackers, police frequently filed complaints against the victims under laws banning the cow slaughter. So this is there. Tribal communities, ये सब factual है. अब आगे चलते हैं. Trump signs executive order restricting immigration. Move is to protect American workers. Donald Trump जो है अपनी पूरी वोट बटोरने में लगे हैं. सो ही सेइंग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या है, इमिग्रेशन को बंद किया जाएगा कोविड-19 का हवाला देते हुए. टेकिंग द शेल्टर बिहाइंड कोविड-19, ही इज ऑन द रोड टू प्रोटेक्शनिज्म ओनली. तो रिस्क फ्रॉम द कोविड-19 रिस्क टू प्रोटेक्ट द अमेरिकन जॉब्स एट रिस्क फ्रॉम कोविड-19 पैंडेमिक. मतलब अमेरिकन जॉब्स जो लोगों की वहाँ पे छटनी होगी, ले ऑफ होंगे, उनके लिए कॉम्पेंसेट करने के लिए ये किया जा रहा है, राइट? So this is there. Mr. Trump had tweeted earlier this week that he would temporarily suspend the immigration. In order to protect our great American workers, I have just signed an executive order. तो इन्होंने executive order sign कर दिया ताकि ये jobs ना हो. Last year, just over 1 million people got green cards. US President signed an executive order barring certain categories of immigrants
from admission to the US for 60 days. Okay, so this is their. Just give me 1 minute, guys. So this is it. In order to protect our great Americans, ये सब डोनाल्ड ट्रम्प प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हो. अब आगे चलते हैं थोड़ा सा. Criticism. Critics have said this latest policy is to distract from the criticisms of his handling of the pandemic. Then President Trump now seeks to distract us from his fumbled COVID-19 response by trying to put the blame on immigrants. तो who are exempted और ये सब चीज़ें हैं. H2B वीज़ा क्या होता है इसको एक बार देख लेते हैं. The order is not expected to halt the processing for many thousands of temporary employees. This potentially includes a sizable number of Indian nationals in the H1B visa skilled workers category. It also includes seasonal workers in the areas like landscaping, agri-businesses, and service jobs in hospitality who fall into the H2B category. Seasonal workers, such as immigrants vital to US farm labor, are still allowed to enter. The order will also likely carve out exemptions for certain categories of essential workers. These include the healthcare workers, those playing a critical role in fighting the pandemic, and those who seek to immigrate via their immediate relatives. So ये सब चीजें हैं. Given this, what impact would the policy have on job market is uncertain. Approximately 22 million Americans have filed for unemployment in recent weeks. तो ये सब सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है, राइट. तो ये फैक्चुअल न्यूज़ है. ट्रम्प्स ऑर्डर नो थ्रेट टू आईटी सेक्टर. हमारे इंडिया का आईटी सेक्टर ये कह रहा है, ऑर्डर ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, यूएस प्रेसिडेंट्स ऑर्डर बैनिंग इमिग्रेशन अंडर वेरियस कैटेगरीज टू US for 60 days need not be seen as a negative sign for the Indian IT sector. It would make strong recommendations to the US administration to consider critical technology workers from India under essential category. तो नास्कॉम जो है इंडिया की प्रेशर ग्रुप है, ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस देंगे वहां की सरकार को कि ये टेक्नोलॉजी वर्कर्स फ्रॉम इंडिया अंडर एसेंशियल कैटेगरी उनको रखा जाए ताकि उनका माइग्रेशन जो है उनकी जॉब्स खतरे में ना हो. इंडियन आईटी सेक्टर के जो वर्कर्स हैं यूएसए में उनकी जॉब्स को कोई खतरा ना हो. इट इज़ टू अर्ली टू सी एनी इम्पैक्ट ऑन Indian tech sector, but what came out is the first executive order speaking about permanent migrants, green card holders, and also about people who are outside of the country. Yes, कल की क्लास YouTube पे ही होगी. So this is there. Now, however, the order will not apply to more than 6 lakh Indian H1B visa holders and their spouses who are currently in the US. There is no immediate effect. Still, we have to see. There is no immediate effect. Still, we have to see how these numbers pan out in the future. The US H1B visa is a non-immigrant visa that allows US companies to employ graduate level workers in specialty occupations. Okay, specialty occupations require theoretical or technological expertise in specialized fields such as in IT, finance, accounting, architecture, engineering, mathematics, science, etc. So any professional level job that usually requires you to have a bachelor's degree or higher
can come under H-1B visa for specialty occupations. So this is there. Iran vows to hit back if threatened. ईरान ये कह रहा है कि अगर ईरान को ज़्यादा परेशान किया गया और थ्रेटन किया गया तो ईरान भी रिटालिएट कर सकता है. Iranian Navy vessels, as you can see, Iranian Navy vessels maneuvering close to USS Paul Hamilton in the North Gulf. तो गल्फ ओशन में ये आप देख सकते हो ईरानियन नेवल वेसल जो है USS पोल हैमिल्टन, तो यूएस की जो शिप वगैरह है उसके पास मैनोवर करते हुए. तो ईरान ने ये कहा है कि ईरान विल डिस्ट्रॉय यूएस वॉरशिप्स इफ इट्स सिक्योरिटी इज threatened in the Gulf, the head of Iran's elite revolutionary guard said a day after US president warned Tehran over harassment of US vessels. Okay, so this is it. Major General has ordered naval forces to destroy any American terrorist force in the Persian Gulf that threatens the security of Iran's non-military ships. ईरान की नॉन मिलिट्री और मिलिट्री शिप्स को अगर कोई थ्रेटन करेगा तो उसे ईरान रिटालिएट करने का हक रखता है. यूएस प्रेसिडेंट said he had instructed the US Navy to fire on any Iranian ship that harass it at sea, but said later he was not changing the military's rules of engagement. Earlier this month, the US military said 11 Revolutionary Guards naval vessels from the Guards Navy came close to US Navy and Coast Guard ships in the Gulf, calling the moves dangerous and provocative. Iran's foreign ministry summoned the Swiss ambassador in Tehran, who represents US interests in the country. तो ये सब दोनों के बीच में रिटालिएशन चल रहा है. ये है पर्शियन गल्फ का रीजन जहाँ पे आप देखेंगे कि ये डॉटेड लाइंस हैं जैसे कि आर्मी के बेसिस, नेवी ये ऑरेंज या सेमी ऑरेंज टाइप ऑफ कलर है, ऑरेंज, पिंक और दिस कलर ये यूएसए के हैं. यूएसए के आप देखेंगे कि ये कन्फाइंड है इस एरिया में. क्यों? क्योंकि ये कंट्रीज जो हैं सऊदी अरेबिया, ओमन, ये यूएस एलाइज हैं. अब आप ईरानियन बेसिस देखेंगे, कोस्ट लाइन के बेसिस को हम सिर्फ देख रहे हैं. डार्क ग्रीन को नज़र रखिएगा. दिस इज़ नेवल बेस ऑफ ईरान. ओके, द एयरफोर्स कम नेवल बेस. ये चीज़ें यहाँ पे क्लैश की जो ये है नॉर्थ पर्शियन गल्फ में, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं. अगर कोई भी ईरानियन यूएस शिप ईरान के शिप को यहाँ पे चैलेंज करता है या कुछ ऐसा, तो उनको ये कहा जा रहा है कि आपको काउंटर रिटालिएट किया जाएगा. Why would Swiss ambassador represent the US interest? अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? ईरान फॉरेन मिनिस्ट्री समन द स्विस एम्बेसडर. ये दोनों में कोई एम्बेसी नहीं है. ईरान और यूएसए की एक दूसरी कंट्रीज में एम्बेसी नहीं है. डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में व्हेन डोनाल्ड ट्रंप बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ही वांटेड Iranian ambassadors to go back. And Iran also had asked US embassy to be shut in Iran. इसीलिए दोनों स्विस एम्बेसी से डील करते हैं, राइट. स्विस एम्बेसी में कोई भी मैसेज जो यूएसए का होता है वो भी स्विट्जरलैंड की एम्बेसी को पास ऑन किया जाता है लाइकवाइज. ओके, सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस. अमेरिकन्स हैव एक्सपीरियंस्ड आवर पावर इन द पास्ट एंड मस्ट लर्न फ्रॉम इट. Iranian foreign minister Mohammed suggested that US president should focus on saving US service members from the पैंडेमिक रादर देन क्रिएटिंग ट्रबल. पिछले दिनों हमने देखा कि ये इराक और ईरान बाउंड्री है. जब ईरानियन कमांडर जो कि स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट थे ईरान के लिए, उस कमांडर को जब असैसिनेट किया गया, ईरान के कमांडर को यूएस फोर्सेस ने मार गिराया, तो उसके बाद इराक में जो यूएस आर्मी के, नेवी के जो बेसिस हैं, आर्मी के जो बेसिस हैं, नेवी के जो बेसिस हैं, यहाँ पे उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा मिसाइल्स फायर करना शुरू हो गया. ईरान ने ये मिसाइल्स को फायर करना स्टार्ट किया और इसके बाद यूएसए से न्यूज़ आई कि यहाँ पे एक पेट्रियट मिसाइल लॉन्चर, पेट्रियट मिसाइल को और इंटरसेप्टर को यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि जैसे ही ईरानियन लैंड से कोई मिसाइल फायर होगी तो काउंटर रिटालिएशन हो सके. लेकिन ये सुलेमानी. ओके, यस, वहाँ पे क्लास कंप्लीट हो गई. मैंने बंद कर दी क्योंकि ये स्ट्रीमिंग प्रॉपर नहीं हो रही थी और मैसेज भी पोस्ट किया है वहाँ पे, राइट. वहाँ पे 2 घंटे के बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगा जो लोग यहाँ पे नहीं प्रॉपरली देख पा रहे हैं. सो अब इराक के ऊपर ईरान ने प्रेशर बनाना शुरू किया कि इराक यूएस आर्मी को कहे कि वो वहाँ से जाएं. यूएस आर्मी शुड लीव ईरान. Pressure was mounted by Iran on Iraqi civilian government.
for asking US army to leave Iraqi land so that ईरान कैन कंटिन्यू विद इट. सो ये इनका दोनों का क्या है, स्ट्रैटेजिक ये चलता है. इराक जो है ईरान की इन्फ्लुएंस में काम करता है. यहाँ पे आप छोटी और कंट्रीज देखेंगे, सीरिया भी ईरान के इशारों पे काम करता है. एंड देन यमन में हूती रेबल्स हैं, ये भी हमने पिछले दिनों डिस्कस किया था. हूती रेबल्स आर ऑल्सो शिया मुस्लिम्स. ईरान इज ऑल्सो शिया मुस्लिम सेक्ट एंड सीरिया ऑल्सो पार्टली शिया मुस्लिम. तो ये कंट्रीज कुछ ऐसे रिलीजियसली डिवाइडेड हैं. क्लियर? देन US military is hit by over 5,000 COVID-19 infections. Also, US forces have no business 7,000 miles away from home, provoking our sailors off our own Persian Gulf shores. So this is there. Then, ये सब चीज़ें. मिडल ईस्ट क्राइसिस में ईरान, इंक्रीजिंग वायलेशंस ऑफ न्यूक्लियर डील. ईरान में क्या क्या ये चल रहा है एक बार ये देख लेते हैं सिनेरियो. साइबर अटैक्स ऑन US एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मिसाइल अटैक्स ऑन US ड्रोन्स, अटैक्स ऑन US वॉरशिप्स. We'll have to upload a recorded video on YouTube. So this time, attacks on US military bases by pro-Iran militias, rocket attacks on US positions. Rocket attacks इराक में किए जा रहे हैं. अटैक क्या कर रहा है ईरान? अटैक US military bases पे अटैक कर रहा है. ये हमने स्टडी कर लिया. Then rocket attacks on US positions, renewed attacks on US embassy in Baghdad. इराक में जो US की एम्बेसी है उस पर भी इराक के अटैक्स हो रहे हैं. देन सीरिया, अटैक्स ऑन US फोर्सेस बाय प्रो इरानियन मिलिटेंट्स. राइट. देन रॉकेट अटैक्स ऑन इजराइल, अटैक्स ऑन इजरायली पोजीशंस इन गोलन हाइट्स. सीरिया में जो गोलन हाइट्स हैं, इजरायली जो पोजीशंस है, इजराइल क्योंकि यूएसए का एलाई है वहां पे भी अटैक किए जा रहे हैं. राइट. देन इजराइल, साइबर अटैक ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इजराइल, रॉकेट अटैक फ्रॉम सीरिया. All these things you can see are happening increasingly. So, rocket drone strikes on oil facilities, attacks on ships in Strait of Hormuz. Saudi Arabia में अटैक जो शिप ईरान जो सऊदी अरेबिया के शिप्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जो कि ईरान और इन कंट्रीज के बीच में शेयर की जाती है. ये है आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. राइट. दिस इज योर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. लेट मी जस्ट इरेज एवरीथिंग ऑन द मैप. दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. दिस वन. ओके. यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया के शिप्स हैं पेट्रोलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं. और देन क्लोजिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. सऊदी अरेबिया ये धमकी दे रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्लोज कर दिया जाएगा. ईरान बोल रहा है कि करके दिखाओ. ईरान के अंडर आती है बेसिकली ये. राइट. ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ये ईरान का इलाका है. आप देखोगे कि यहाँ से होके शिप्स गुजरते हैं तो ईरानियन इलाके में. और इसी के चलते कतर जो कि ईरान की तरफ करीबियाँ बढ़ा रहा था, Qatar's relationship was with Iran was increasing. Qatar is a member of GCC, तो कतार को निकाल दिया गया था GCC से 2018 में. 2017 में ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ. 2017 में इसे निकाल दिया गया था और अभी तक एडमिट नहीं किया गया. 2017. राइट. सो जस्ट मेक अ करेक्शन. तो ये सब चीज़ें हैं. नाउ ये थोड़ा सा खुद पढ़ लेना. हाउ यूएस कुड बाइट बैक. यूएस हैज वास्ट एरे ऑफ military hardware in the Middle East. Among the military options pictured above are F-22 Raptor fighters based in Qatar, cruise missile armed Ohio class submarines. So submarines भी वहाँ पे deployed हैं. US special forces who are still based in northern Iraq and Syria. Strategic assets such as B-2 stealth bombers. How Russia could be dragged in. Tens of thousands of Russian troops and aircrafts are based in Syria in support of Bashar al-Assad's regime. They include special forces and the feared S-400 anti-aircraft missile. इस S-400 से काफ़ी अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स को गिराया भी गया है पास्ट में. Okay, if the conflict escalates, Russia could feel compelled to defend its ally Syria and Iran, or retaliate if the troops are killed as collateral damage by the US. तो ये एक चेस बोर्ड बना हुआ है और इसमें प्यादे किन के हैं? सीरिया के, ईरान के, सऊदी अरेबिया के. कुछ जो लीडर्स हैं वो किन के हैं? यूएसए के. मिलिट्री लीडर्स आगे इन्होंने लगा रखे हैं 10,000 या कुछ ऐसे आर्मी लगा दी, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान मिडिल ईस्ट का हो रहा है. क्लियर? सो दिस इज देयर. देन इकोनॉमी एंड इंटरनल सिक्योरिटी. रेपो ऑक्शंस गेट पुअर रिस्पॉन्स. आरबीआई ने, हम पिछले दिनों इस न्यूज़ एनालिसिस को कवर करते आ रहे हैं, इस न्यूज़ आर्टिकल को. जस्ट लेट मी टेक अ ग्लास ऑफ वाटर.
यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनबीएफसीज में लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए इसे गल्फ कहते हैं. लेट मी जस्ट टेल हिम दिस पार्ट, जो कि ये गल्फ बना हुआ है ना, मीनिंग भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो. दिस इज कॉल्ड एज गल्फ. ओके, दिस रीजन ऑफ कंट्रीज. अब वाई, देखो करंट अफेयर्स का कोर्स है ये, मैं समझाने बैठूंगा तो मैं फिर ज्योग्राफी में एक्सपर्टीज हो जाऊंगा, है ना. तो अभी नहीं, किसी और दिन किसी और वे में समझेंगे. नाउ कमिंग हियर, नो दिस इज द करंट अफेयर्स क्लास, सो दैट्स वाई. अब यहाँ पे देखो कि आरबीआई ने क्या किया. व्हाट हैज आरबीआई डन? आरबीआई हैड ऑक्शन्ड दीज सिक्योरिटीज, कि आप बैंक्स जो हैं ये सिक्योरिटीज को ले लें और ये सिक्योरिटीज को दे दें. मतलब बैंक्स के पास जो सिक्योरिटीज हैं वो बैंक्स, मान लो कि एसबीआई किसको दे देगा? आरबीआई को. और आरबीआई को इन रिटर्न पैसे मिल जाएंगे. दिस मनी विल, आरबीआई को ये बोला जा रहा है ये टारगेटेड है. दिस मनी दैट एसबीआई विल बी गेटिंग इज टू बी टारगेटेडली यूज्ड फॉर एनबीएफसीज, राइट. एनबीएफसीज में क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, देयर इज नॉट इनफ कैश विद एनबीएफसीज. अब एनबीएफसीज के पास कैश नहीं है, इसीलिए आरबीआई ने ये कहा कि ठीक है, मैं आपको सस्ते में ये सिक्योरिटीज आपसे खरीद रहा हूँ, यानी कि महंगे में खरीद रहा हूँ, और आपको इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम देना पड़ेगा. अब आप ये सिक्योरिटीज के वजह से हमसे पैसा ले लो, ये गिरवी रख दो सिक्योरिटीज हमारे पास, आरबीआई के पास. कीप दिस एज कोलैटरल and take money in return. The money that will be given has to be used for injecting liquidity or giving loans. Banks should in return give loans to this NBFCs and माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. क्योंकि पिछले दिनों ये न्यूज आई थी कि माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एनबीएफसीज रेगुलरली ये माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लोन्स को अभी डेफर नहीं किया गया है, राइट. सो दिस इज द रीजन कि माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास और एनबीएफसीज के पास इनफ पैसे नहीं है. जबकि बैंक्स को ये कहा गया है, बैंक्स के कस्टमर्स को ये कहा गया है कि बैंक्स के कस्टमर्स बैंक्स को ईएमआई पे नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, राइट. क्योंकि 3 महीने तक ईएमआई पे जो है रिलैक्सेशन दी गई है. लेकिन एमएफआईज को या एनबीएफसीज को ये रिलैक्सेशन नहीं दी गई. Being a customer of the bank, MFIs have to pay the EMI. MFIs क्या करते हैं? छोटे छोटे लोगों को, गरीब लोगों को लोन देते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन देते हैं. माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एसबीआई, पीएनबी, इन बैंकों से पैसा लेते हैं लोन पे और आगे गरीब लोगों को लोन में देते हैं. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इन ईएमआईज पे, कमर्शियल बैंक्स द्वारा दिए गए लोन्स की ईएमआईज पे तो मोराटोरियम लगाया गया है. अ मोराटोरियम हैज बीन केप्ट, ओके, on the EMIs by customers of the commercial banks, but EMIs by the customers of microfinancial institutions are not under moratorium. अब बाद में गवर्नमेंट ने मोराटोरियम इस पे एक्सटेंड किया, और ऐसे टाइम पे जब क्राइसिस है तो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विल डू अ वेरी गुड जॉब बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द पीपल एट द ग्राउंड लेवल. इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पैसा मिलता रहे, गरीब लोगों को पैसा मिलता रहे, ये काम करने के लिए एसबीआई वगैरह को कहा जा रहा है कि आप एनबीएफसीज को लोन देना कंटिन्यू रखो. एसबीआई बोल रहा है पैसे नहीं है, आरबीआई ये बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के जरिए आपको हम 3 साल तक की सिक्योरिटीज हम आपकी गिरवी रखेंगे. आरबीआई विल गिव द लोन फॉर 3 years, राइट. RBI will give the loan for 3 years by keeping repo securities as collateral, government securities as collateral, and the discount value will be very, very less. And why it is called as targeted? Because the funds being used, the funds being given have to be used in a targeted manner for injecting liquidity into these NBFCs only. Is this clear? So this is the meaning of it. Now let's read line by line
the first auction of the second tranche of RBI's targeted long-term repo operations, which were meant for liquidity support to non-banking financial companies, so that non-banking financial companies get enough money. It received, so the auction received poor response from the banks, as the banks did not bid. As the partly NPA is the reason. ओके, पार्टली एनपीए इसका रीजन है. अब यहाँ पे बैंक्स ने बोली ही नहीं लगाई. बैंक्स डिड नॉट इवन पार्टिसिपेट एंथुसियास्टिकली इन द ऑक्शन. व्हाई? इसको समझते हैं. होता क्या है, इफ अ बैंक इज इन नीड ऑफ मनी, bank will participate in the auction. In the auction, RBI will RBI will say that okay, I will take your government security, I will keep it as a collateral, इसको गिरवी रखूंगा. RBI ये बोल रहा है, लेकिन बैंक्स को SBI, PNB, ICICI, they have to participate in this auction. Okay, they have to participate in this auction. अब यहाँ पे ये सिक्योरिटी जो है 10,000 रुपीज की है, राइट? Security is of 10,000 rupees. It is just being kept as a collateral. It is not being sold off. How this is being sold off? Yesterday I had explained in my fundamentals of economy class also. Those guys who were there with me, Aman, you were there. तो अब इसमें होता क्या है कि 10,000 की सिक्योरिटी है. SBI will say I am ready to buy it at 9,600 rupees. I am ready to keep it as a collateral at 9,600 rupees. Meaning that SBI is borrowing just 9,600 rupees and SBI will pay 400 rupees as the interest to RBI. And PNB says that I am ready to, PNB फिर बोली लगाता है 9650 और 9550, यानी कि इसमें RBI को फायदा है. PNB says that I need just 9550, I'll pay you 450 rupees as the interest. Clear? So this kind of an effective bidding takes place. That means that banks are coming forth and they are ready to get these funds. These funds are targeted funds. They have to be used only for giving loans to NBFCs. If the banks are not quite enthusiastic, banks are like just lackadaisical, lethargic हैं कि भाई अच्छा RBI ने बोला है तो कर लेते हैं. Targeted long-term repo operations में banks did not participate that enthusiastically because they are not they are not interested in giving loans to NBFCs and microfinancial institutions. Right? ब्यूटी पार्लर वाला एग्जाम्पल कौन सा था, मैं भूल गया. ओके, ब्यूटी पार्लर वाले एग्जाम्पल से भी इसे समझ सकते हैं. एग्जाम्पल ये है ओके कि यस, बच्चे वाला एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, अभी वो प्लस क्लास के लिए रख लो, यहाँ पे ज़्यादा लेंदी हो जाएगा DNA. वैसे ही ये लोग बोलते रहते 2-2 घंटे का हो गया. एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ इट. बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अगर फादर ने मदर को पैसे दिए, मदर ने बोला कि यस, आई विल क्विकली गिव दिस एग्जाम्पल. मदर ने बोला, फादर ने दिए मदर को पैसे और मदर चली गई ब्यूटी पार्लर, राइट? फादर ने बोला कि ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें और पैसे दे रहा हूँ, तुम ये पैसे सिर्फ बच्चों को ही दोगी. बच्चे कौन है यहाँ पे? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एटसेट्रा, राइट? मदर ने बोला कि ठीक है बच्चों को देंगे, लेकिन बच्चों को पैसे दिए तो बैड डेट हो जाएंगे, राइट? इसलिए मदर देना ही नहीं चाहती. अब चाहे वो टारगेटेड रेपो रेट पे दे RBI या किसी पे दे, जब मदर बच्चों को पैसे देना ही नहीं चाहती, मदर का इंटरेस्ट किस में? किटी पार्टीज में और ब्यूटी पार्लर्स में, तो कोई फायदा नहीं है. समझ में आया? दिस इज द सिचुएशन ऑफ RBI. RBI वांट्स बैंक्स, यानी कि मदर, बैंक इज द मदर हेयर, ओके, SBI, RBI is the father and children are the SHGs. Clear? So this is it. Okay, I have already explained. तो ये समझ में आया. Limited, RBI received just 14 bids worth rupees 12,850 crore in the auction that was conducted against a notified amount of 25,000 crores of the 3-year tenure. Long term मतलब 3-year tenure तक की भी सिक्योरिटीज, रेपो रेट सिक्योरिटीज इशू की जा सकती हैं, राइट? यस, आज मजा नहीं आ रहा DNA में. द सेम हेयर. एनीवेज, वी हैव टू स्टडी द न्यूज आर्टिकल्स. RBI ने ये लेकेडाइजिकल एटीट्यूड के बाद ये कहा कि RBI इसको दोबारा से ऑपरेशन ट्विस्ट को स्टार्ट करेगा टू मैनेज यील्ड्स. ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है? सेंट्रल बैंक विल बाय 10,000 crore rupees और bonds
which are maturing between 2026 and 2030 and sell the same amount of T-bills. यानी कि लॉन्ग टर्म के पैसे लेके शॉर्ट टर्म के पैसे दे दिए जाएंगे. वो जो गाना है ना, एंड वी ट्विस्ट, उसमें क्या होता है, पहले वो बॉडी इधर घूमती है, फिर बॉडी इधर घूमती है, राइट. यहाँ पे कुछ ऐसा ही किया जा रहा है कि पहले लॉन्ग टर्म में जो मेच्योर होने वाली बॉन्ड्स हैं उनको आरबीआई खरीद लेगा. ठीक है, आरबीआई खरीद लेगा, उससे लॉन्ग टर्म के पैसे आ जाएंगे बैंक्स के पास. बैंक्स को जो पैसे 2026 से 2030 के बीच में मिलने थे वो पैसे बैंक्स को पहले दे दिए जाएंगे, और उसके जरिए जो अभी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी बैंक्स के पास में ज्यादा है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा. अब यहाँ पे समझो इसको, बैंक्स क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? बैंक्स आर इन केमचो मजामाचो, राइट. क्यों? बैंक्स आर हैविंग अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी. अब बैंक से लिक्विडिटी सक करी जाएगी. ट्रेजरी बिल्स कितने दिनों के होते हैं? 90 डेज के, 180 डेज के. तो बैंक्स, आरबीआई को ये पता लग गया कि बैंक्स आर वेरी कंफर्टेबल, तो पहले बैंक्स को रुलाया जाएगा. कैसे? शॉर्ट टर्म में ज्यादा रेट का लालच देके बैंक्स को बोला जाएगा ये रही आपकी सिक्योरिटीज, टी बिल्स खरीदो, आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा. बैंक्स ये खरीद लेंगे, राइट. अब इससे क्या होगा? बैंक्स की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कम हो जाएगी. उसके बाद जब दोबारा से रेपो रेट ऑक्शंस करी जाएंगी TLTRO, तो बैंक्स के पास में पैसे नहीं है, क्योंकि बैंक्स ने ऑलरेडी लालच में ये पैसे टी बिल्स में लगा दिए. टी बिल्स क्या करेगा आरबीआई? सेल करेगा, राइट. सेल करेगा यानी कि टी बिल्स इनको दे देगा बैंकों को और बोलेगा 10,000 के बदले तुम्हें 10,200 रुपए मिलेंगे. समझ में आया? टी बिल्स होते हैं ट्रेजरी बिल्स. ट्रेजरी बिल्स का मतलब, जब गवर्नमेंट को ये पता है कि गवर्नमेंट की कॉफर में, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में, खजाने में पैसे नहीं है, गवर्नमेंट की गुल्लक में पैसे नहीं है और गवर्नमेंट को सैलरी देनी है, राइट. तो 90 डेज के लिए गवर्नमेंट को कर्जा चाहिए. क्यों? क्योंकि अभी जीएसटी कलेक्शंस तो हो नहीं रही, लेकिन गवर्नमेंट को सैलरीज तो देनी है, एम्प्लॉयज की, मनरेगा वर्कर्स की सैलरी देनी है. तो 90 दिन के बाद जीएसटी आएगा, क्योंकि अभी जीएसटी पे करने पे भी रोक लगा दी गई है. क्लियर? तो इसलिए टी बिल्स के जरिए सरकार शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेती है. किससे? आरबीआई के थ्रू. आरबीआई क्या करता है? आरबीआई टी बिल्स बैंक्स को बेचता है. अब आरबीआई ये टी बिल कुछ ऐसे बेचेगा कि ठीक है, आप ये टी बिल ले लो, 90-100 रुपीज में आपको ये टी बिल दे रहा हूँ, और बदले में आपको 3 महीने बाद 10,000 मिल जाएंगे. तो बैंक को ये काफी अच्छा लगेगा कि 10,000 रुपये पे 200 रुपये सीधा ही मिल रहे हैं, 800 रुपये सीधा ही मिल जाएंगे. बैंक्स शॉर्ट टर्म में अपना पैसा लगा देगा, और आरबीआई क्या करेगा? फिर बैंक्स को बाद में बोलेगा कि अब तुम TLTRO के जरिए ये पैसा भी लो, ताकि बैंक्स की जो लिक्विडिटी कंडीशन जो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है उसको अनसेटल करने के लिए. शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी बैंक्स के पास ज़्यादा है, इसीलिए बैंक्स TLTRO जो कल की गई उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे. ठीक है, पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए पहले जो छोटी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में, जो आने वाले 3 से 6 महीने में बैंक्स के पास पैसा ज़्यादा है, उस पैसे को पहले अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और फिर बाद में LTRO ऑपरेशंस किए जाएंगे. क्लियर? तो ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है? ऑपरेशन ट्विस्ट ये होता है कि मान लो ये बैंक की बॉडी है, बैंक को बोला जा रहा है ये एसबीआई है, ठीक है, एसबीआई को बोला जा रहा है कि छोटे वाले पैसे, जो छोटी अवधि के पैसे हैं वो हमें दे दो. ये पैसे आरबीआई के पास चले गए, राइट, और जो लंबी ड्यूरेशन के पैसे हैं वो हमसे ले लो. ये ट्विस्ट हो रहा है ना हैंड, मानो कि जैसे ये डांस कर रहा है, राइट, ट्विस्ट हो रहा है. अब ये पैसे आरबीआई लॉन्ग टर्म के इनको दे देगा. समझ में आया? तो ये हो गया एंड वी ट्विस्ट वाला डांस, बैंक्स को नचाया जा रहा है. समझ में आया? सो दिस इज देयर. अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज वन ऑफ द क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स which is employed by the central bank to control the money supply very rapidly. Open firing, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर टेररिस्ट कोई घुस आए हैं, राइट, ये बात बैंक्स जानते हैं, तो इसीलिए ये सब पैसे का ही तो खेल है, राइट. मतलब बैंक्स को क्या चाहिए? रिटर्न अच्छा चाहिए. तो दैट इज व्हाट द बैंक्स आर डूइंग. बैंक्स विल इन्वेस्ट देयर मनी. वो तो आरबीआई ने बता ही दिया ना कि ऑपरेशन ट्विस्ट हम करेंगे, तो बैंक्स उसमें फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि उनके पैसे पड़े हैं, लोन लेने कोई आ नहीं रहा, तो इसलिए बढ़िया है कि ट्रेजरी बिल्स में पैसे लगा दो. क्लियर? ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर कंडक्टेड बाय द आरबीआई बाय वे ऑफ सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज to adjust money supply conditions. The central bank sells government securities to remove liquidity from the system. They are compelled, nahi, they are lured to do that.
लालच दे के करवाया जाता है, राइट? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इट. आरबीआई कैरीज आउट द ओपन मार्केट ऑपरेशंस थ्रू कमर्शियल बैंक्स एंड डज नॉट डायरेक्टली डील विद द पब्लिक. ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या हो रहा है, देखो नॉर्मल टाइम्स के लिए, ध्यान से सुनो इधर, नॉर्मल टाइम्स के लिए तो रेपो रेट होता है, रेपो रेट बढ़ा दो, कम कर दो, ज्यादा कर दो. लेकिन जब सिचुएशन हाथ से बाहर चली जाए तब आरबीआई क्या करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है, सीधे ही बोलता है कि ये लो सिक्योरिटीज खरीदो. अब यहाँ पे सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट रेट की बात नहीं हो रही, रेपो रेट में ये हो रहा है कि मनी लो, इतना इंटरेस्ट रेट दो. अब यहाँ पे ये हो रहा है कि सिक्योरिटीज दो, इतना पैसा लो, सीधा हजारों करोड़ों की बात एक साथ बैंक्स में, बैंकिंग सेक्टर में लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे. यानी कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो लाखों करोड़ों रुपीस आरबीआई एक झटके में एब्जॉर्ब कर लेगा. जैसे फ्लड आई होती है पैसे की, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन करके आरबीआई अपने पास पैसे ले लेगा. लेकिन अगर मान लो कि पैसे बैंक के पास में ज्यादा हैं, कम है, तो क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेगा बैंक से, सस्ते दाम पे खरीद लेगा, अपना नुकसान करके. ठीक है, क्योंकि आरबीआई का जो नुकसान होगा वो तो बजट में गवर्नमेंट उसे पूरा कर देगी. लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन से जल्दी से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है. क्लियर? You were using translator to understand my examples, hence I could not watch the DNA live. I'm so sorry, Selva, you have been requesting me to do the DNA in English, but you have to understand my constraints also. Okay, so this is it. How OMOs work. तो यहाँ पे देखो, when RBI wishes to infuse liquidity into the market, it buys back the bonds. अब यहाँ पे ये नहीं हो रहा bonds पे rate of interest पे पैसे दिए जाएंगे, collateral नहीं हो रही, ये सीधा खरीद और बेच हो रही है. समझ में आया? खरीदा बेचा जा रहा है सीधा, या तो करोड़ों रुपए ये नोट्स आएंगे या ये जाएंगे, राइट? तो इससे क्या होगा, एकदम से लिक्विडिटी एब्जॉर्ब की जा सकेगी. When liquidity is more, the government can borrow at lower yields. है ना, इसमें गवर्नमेंट का भी फायदा है, गवर्नमेंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, अदरवाइज बोरोइंग्स विल बिकम एक्सपेंसिव. लिक्विडिटी बैंक के पास में ज्यादा है, बैंक्स एसबीआई, आईसीआईसीआई, इनके पास में लिक्विडिटी ज्यादा है, इसीलिए तो इन्होंने कल टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट नहीं किया. इनको लग रहा है कि ठीक है लिक्विडिटी ऑलरेडी है, फालतू में पैसे क्यों लेने हैं, सिर्फ वाई टू टेक मनी ओनली फॉर द एनबीएफसी सेक्टर, वी विल डू समथिंग एल्स, राइट? अब एसबीआई क्या, आरबीआई क्या करेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए इस लिक्विडिटी को अब्जॉर्ब करेगा. बेनिफिट नंबर 1, गवर्नमेंट बोरोइंग्स एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. बेनिफिट